اسرائیلی وزیر اعظم نے ہاٹ لائن پر امریکی صدر کو صورتحال کی سنگینی سے مطلع کر دیا تھا۔ امریکی صدر نے بحر اوقیانوس میں گشت لگاتے اپنے طیارہ بردار جہاز کو فوراً بحیرہ روم میں پہنچنے کا حکم دے دیا اور اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا۔ ایسا ہی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی بلا لیا تھا۔ اس اجلاس میں بحری، بری اور فضائی تینوں افواج کے کمانڈرز موجود تھے۔ زیر زمین ایٹمی میزائلوں پر فلسطینی کمانڈوز کے قبضے کی خبر کو بڑی شدت سے خفیہ رکھا گیا تھا۔ پاکستانی سفارتکار کی بیٹی اسرائیلی انٹیلیجنس کے قبضے میں تھی اور اس وقت ایک اسرائیلی آبدوز میں قید تھی جو بحیرہ روم کی گہرائیوں میں چکر لگا رہی تھی۔ پاکستانی سفارتکار اور معروف سائنسدان کی اس بیٹی کی وجہ سے امریکہ اسرائیل کے ذریعے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک زبردست مفاد حاصل کرنا چاہتا تھا جو اب خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اگر اسرائیل کو اپنی تباہی کا خوف درپیش تھا تو امریکہ بھی کسی صورت میں تیسری ایٹمی جنگ شروع کر کے اپنے شہروں اور ان کی آبادی کو ملیا میٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنے سیاسی مفادات بھی عزیز تھے، وہ انہیں بھی اتنی آسانی سے نہیں کھو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اسرائیلی وزارت دفاع سے باقاعدہ رابطہ استوار کیا اور اسرائیلی وزیر اعظم کی وساطت سے اس آبدوز کو بحیرہ روم کے سمندر میں ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم جاری کروایا۔ ابھی تک اسرائیلی کیبنٹ کے حزب مخالف کو اس خطرناک ترین صورتحال کا علم نہیں ہوا تھا۔ یہ بات ابھی تک اسرائیلی وزیر اعظم اور تینوں افواج کے سربراہوں اور سیکریٹری تک ہی محدود تھی، یا پھر ایٹمی میزائل اسٹیشن کے کنٹرول کمانڈر کو صحیح صورتحال کا پتہ تھا۔ باقی عملے کو اسی جگہ پابند کر دیا گیا تھا اور انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ 2 فلسطینی کمانڈو میزائل کے اڈے میں گھس گئے ہیں اور بے پناہ رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم اسرائیلی اور امریکی ہتھ کنڈوں سے خوب واقف تھے۔ نمبر 3 نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم نے 12 بجے تک کا جو وقت دیا ہے وہ اس دوران میں بھی امریکہ کے محکمہ دفاع سے مل کر کوئی جوابی اسکیم تیار کرے گا، لیکن اسے معلوم ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گا کیونکہ ترپ کا پتہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3 مجھے نیچے تہہ خانے میں لے گیا۔ ہم لفٹ کے ذریعے زمین کے نیچے 200 فٹ کی گہرائی میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ 3 دیو پیکر ایٹمی میزائل ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ نصب ہیں۔ ان ایٹمی میزائلوں کو دیکھ کر واقعی خوف سا آ گیا۔ ان میں لاکھوں ایٹم بموں کی طاقت تھی۔ میزائل اڈے کے پہلو میں ایک دروازہ تھا۔ ہم اس کے اندر گئے تو نمبر 3 نے کہا، اوپر چاہے سینکڑوں ایٹم بم چل رہے ہوں، ان کا اثر یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس جگہ کو ایٹمی تابکاری سے محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں 6 ماہ کے لیے خوراک، پانی اور دوسری تمام سہولتیں موجود ہیں۔ ہم ایک نسبتاً کشادہ کمرے میں آ گئے تھے جس کی چھت کے ساتھ کتنے ہی پائپ لگے تھے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ میزوں پر برتن، کتابیں، رسالے موجود تھے۔ آگے درجن بھر کیمپ کارٹس پڑی تھیں جن پر میٹریسیں بچھی تھیں۔ فریزرز میں گوشت، سبزیاں، مکھن، جیم وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی یخ الماریوں اور ریفریجریٹروں میں بھی کھانے پینے کی اشیاء اور مشروبات بھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف 7 مائکرو ویو اوون لگے تھے، گویا یہاں ایٹمی جنگ چھڑ جانے کی صورت میں درجن بھر انسان بڑی آسانی سے 6 ماہ بالکل محفوظ رہ کر بسر کر سکتے تھے۔ نمبر 3 نے مجھے آکسیجن کے سلنڈر دکھا کر کہا، ان میں 1 برس کے لیے آکسیجن موجود ہے۔ اس نے ایک الماری سے کوکا کولا اور سینڈوچز نکالے اور ہم انہیں کھاتے ہوئے اوپر پینل پر آ کر بیٹھ گئے۔ ٹھیک 11 بجے سرخ فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر 3 نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم کی آواز ابھری، ہیلو، ہمیں تمہاری شرطیں منظور ہیں۔ ہم لاکھوں بے گناہ انسانوں کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتے۔ پاکستانی خاتون اس وقت یہاں سے 2000 میل دور ایک خفیہ جگہ پر قید ہے۔ میں نے اسے وہاں سے لانے کا حکم دے دیا ہے۔ ایک تیز رفتار جیٹ طیارہ اسے لے کر وہاں سے چل پڑا ہے۔ وہ شام تک یہاں پہنچ جائے گی۔ نمبر 3 کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہا، لیڈر، ہمارا مشن کامیاب رہا۔ وزیر اعظم نے ہماری شرط تسلیم کر لی ہے۔ قدرتی بات تھی کہ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خیال آیا کہ کہیں یہ اس کی کوئی چال نہ ہو، لیکن میں نے پاکستانی لڑکی کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ میں نے سوچا جب تک اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گا ہرگز نہ نکلوں گا۔ نمبر 3 کچھ دیر اسرائیلی وزیر اعظم سے گفتگو کرتا رہا۔ وہ لڑکی کو ہمارے حوالے کرنے اور وہاں سے فرار ہونے کی تفصیلات طے کر رہا تھا۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ طے یہ ہوا کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر میں پاکستانی لڑکی کو بٹھا کر ایٹمی میزائل اسٹیشن کی طرف بھیجے گا اور جب ہماری تسلی ہو جائے گی تو وہ ہیلی کاپٹر ہم ساتھ لے کر اسرائیل کی جنوب مشرقی سرحد عبور کر کے اردن کے بارڈر پر اتار دے گا۔ کہنے کو یہ بڑی آسان ترکیب تھی مگر اس میں بہت سی وضاحت طلب باتیں بھی تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ پاکستانی لڑکی کا چہرہ ہمیں میزائل اسٹیشن کے آنگن میں دکھایا جانا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایٹمی لاکر روم کو چھوڑ کر باہر آ گئے ہوں گے اور اس وقت ہمارا ایٹمی میزائلوں پر قبضہ اور اختیار ختم ہو چکا ہوگا۔ دوسری مشکل بات یہ تھی کہ اردن کی سرحد پر اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو اترتے دیکھ کر اردن بارڈر فورس کے جوان فائرنگ کر کے اسے گرا دیں گے۔
निकलेंगे। मैंने नंबर 3 से कहा, मुझे ये कोई साजिश लगती है। नंबर 3 बोला, हम मिसाइल स्टेशन के कंट्रोलर कमांडर की बीवी को यरगमाल बनाकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर मेरी तरफ झुक कर कहने लगा, हमें आखिर यहाँ से निकलना ही पड़ेगा लीडर। जाहिर है हम एटमी मिसाइल फायर नहीं कर सकते, फिर कब तक यहाँ पड़े रहेंगे। इसराइली हुकूमत इस मामले को तूल भी दे सकती है, जिससे हमारा केस कमजोर होता चला जाएगा। अगर तुम लड़की को पहचान कर अपनी तसल्ली कर लो और तुम्हें यकीन हो जाए कि ये वही मतलूबा पाकिस्तानी खातून है, तो फिर इसमें क्या कबाहत है, हम उसे लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। अगर पायलट ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो कंट्रोलर कमांडर की यहूदी बीवी हमारे पास होगी, वो हमारे खिलाफ कोई हरकत न कर सकेगा। नंबर 3 के दलाइल काफी वजनी थे। हमें आखिर इसराइली हुकूमत पर किसी न किसी शक्ल में एतबार करना ही था। उस वक्त मामला ताज़ा और हैरास अंगेज था। मैं राजी हो गया। शाम के 7 बजे कंट्रोल कमांडर का फोन आया। उसने बताया कि पाकिस्तानी लड़की पहुंच गई है और उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर जहां लाया जा रहा है, आप तैयार हो जाएं। नंबर 3 ने साफ लफ्जों में उसे कहा, मिस्टर कंट्रोल कमांडर, हम तुम्हारी बीवी को बतौर यरगमाल अपने पास रखना चाहते हैं। उर्दन के बॉर्डर पर पहुंचकर उसे वापस कर दिया जाएगा, उसके बगैर हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। तुम्हारी बीवी हमारे पास आध घंटे के अंदर अंदर पहुंच जानी चाहिए। जाहिर है कि कंट्रोल कमांडर एक पल के लिए तो सख्ते में आ गया। उसने कुछ सोचकर जवाब दिया, ये मेरे साथ ज्यादती होगी, लेकिन मुझे इस सिलसिले में वजीर आजम से मशवरा करना होगा। नंबर 3 ने कहा, तुम मशवरा करके हमें बता दो, मगर याद रहे कि तुम्हारी बीवी को यरगमाल बनाए बगैर हम मिसाइल रूम से बाहर नहीं आएंगे। फोन बंद हो गया। मैंने नंबर 3 से कहा कि मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। ये कंट्रोल कमांडर अपनी बीवी की जगह किसी दूसरी औरत को भी भेज सकते हैं, हमने तो उसकी बीवी को बिल्कुल नहीं देखा। नंबर 3 ने कहा, लीडर, अगर तुम पाकिस्तानी लड़की को पहचानते हो और उसे पहचान लोगे तो फिर यकीन करो कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर निकल जाऊंगा, खा कंट्रोल कमांडर की बीवी हमारे पास यरगमाल हो या ना हो। मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी फिर चीख उठी। नंबर 3 ने रिसीवर उठाया। वो कंट्रोल कमांडर से बात कर रहा था। कंट्रोल कमांडर अपनी बीवी को यरगमाल भेजने पर तैयार हो गया था। मुझे अब भी शक था, मगर मैं नंबर 3 पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था। जब रात के 8 बजे तो फोन पर हमें बताया गया कि पाकिस्तानी लड़की को लेकर हेलीकॉप्टर मिसाइल स्टेशन के बाहर उतर आया है। वो लिफ्ट में बैठकर ऊपर चला गया। 5 मिनट बाद उसका फोन आया। मैंने कंट्रोल कमांडर की बीवी को यरगमाल बना लिया है। वो इस वक्त मेरे पिस्तौल की जद में मेरे पास बैठी है। तुम फौरन ऊपर आ जाओ, लेकिन दराज में रखा हुआ जेबी साइज का रेडियो अपने साथ लेते आना। उस छोटे से पॉकेट साइज रेडियो को खोलकर नंबर 3 कमांडो कितनी देर से उसकी तारें और ट्रांजिस्टर वगैरह आपस में जोड़ता रहा। जब मैं ये पॉकेट साइज का रेडियो लेकर उसके पास ऊपर गया तो देखा कि बिजली की रोशनी में एक दरमियानी उम्र की खुशशक्ल मगर दुबली सी औरत शाम का कीमती लिबास पहने, गले में कीमती मोतियों का हार डाले, कुछ बेचैनी के साथ स्टूल पर बैठी थी। उसके पीछे नंबर 3 कुर्सी पर बैठा था और पिस्तौल उसके हाथ में था, जिसके आगे साइलेंसर था। मैंने उसे रेडियो दिया तो उसने बड़ी फुर्ती से उसकी वेवलेंथ को तब्दील किया और सुई 1 मीटर बैंड पर जमा दी और फिर नंबर मिलाकर फोन किया। कंट्रोल कमांडर, इस वक्त जो पॉकेट रेडियो मेरे हाथ में है वो रिमोट कंट्रोल में तब्दील हो चुका है। इसका राब्ता एटमी मिसाइल नंबर 1 से है, जिसे सिकंदरिया के शहर पर गिरना है। अगर हमारे साथ किसी किस्म का भी धोखा करने की कोशिश की गई तो मैं रेडियो का बटन दबाकर न सिर्फ सिकंदरिया बल्कि तिल अबीब और यरूशलेम में भी तबाही मचा दूंगा। कंट्रोल कमांडर ने जवाब दिया कि हमने जो वादा किया है हम उसके पाबंद हैं। जैसा कहा गया है वैसा ही होगा। मेरी बीवी तुम्हारे पास बतौर यरगमाल मौजूद है। पाकिस्तानी लड़की हमारे पास बाहर हेलीकॉप्टर में बैठी है। तुम लोग अब लॉकर रूम से निकल कर आ जाओ और अपनी अमानत लेकर और मेरी बीवी मुझे वापस करके यहाँ से चले जाओ। और हाँ, अब तुम्हें रिमोट कंट्रोल भी हमारे हवाले करना होगा। नंबर 3 ने कहा, ओके, हम बाहर आ रहे हैं। मैंने रिसीवर नंबर 3 के हाथ से लेकर कहा, मैं लीडर बोल रहा हूँ। पाकिस्तानी लड़की को हेलीकॉप्टर से बाहर खड़ा कर दो, मैं उसे देखकर अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। कंट्रोल कमांडर ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा, तुम लोग बाहर आ जाओ। मैंने रिसीवर रख दिया और नंबर 3 की तरफ देखा। मेरी आंखों में एक सवाल था। नंबर 3 ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया और बोला, लीडर डोंट वरी, अगर ऐसी वैसी बात हुई तो मैं इस औरत की खोपड़ी उड़ा दूंगा। यहूदी औरत ने, जो बज़ाहिर कंट्रोल कमांडर की बीवी थी, भर्राई हुई आवाज में कहा, मुझे हलाक न करना, मैं अपने खामद के हुक्म से यहाँ बंधी बंधाई आ गई हूँ, मेरा कसूर कोई नहीं है। नंबर 3 ने गुर्राते हुए कहा, तुम चुप रहो। यहूदी औरत एकदम चुप हो गई। लीडर, मैं आगे चलता हूँ। वो उठा और उसने यहूदी औरत को अपने पहलू में लिया। अब वो इस तरह फौलादी दरवाजे से निकला कि उसके एक हाथ में पिस्तौल था, दूसरे हाथ में पॉकेट रेडियो था और पिस्तौल की नाली यहूदी औरत की गर्दन के साथ लगी हुई थी। मैंने स्टेन गन हाथ में उठा रखी थी। सामने वही लिफ्ट थी जिसके जरिए हम लॉकर रूम में आए थे। लिफ्ट का दरवाजा बंद था। मैंने अप बटन दबाया, ऊपर से लिफ्ट नीचे आ गई। उसका दरवाजा अपने आप खिसक गया। नंबर 3 ने कहा, लिफ्ट में पहले इस औरत को जाने दो। वो अरबी में बात कर रहा था। फिर उसने यहूदी औरत को लिफ्ट में धकेल दिया।
उसके बाद वो खुद भी अंदर आ गया, मैं भी उसके साथ था। लिफ्ट ऊपर वाली मंजिल में जाकर रुक गई। दरवाजा खुला तो हम अपनी जगह पर साकित खड़े रहे। फिर नंबर 3 यहूदी औरत को आगे करके बाहर निकला। बाहर सामने राहदारी खाली पड़ी थी। नंबर 3 ने चिल्लाकर कहा, सामने आओ कंट्रोल कमांडर। राहदारी की एक जानिब से एक इस्राएली वर्दी पोश उधेड़ उम्र का आदमी नमूदार हुआ। उसने दोनों बाजू ऊपर उठाते हुए अरबी में कहा, मैं निहत्ता हूँ। फिर यहूदी औरत की तरफ देखकर बोला, नादिया डोंट वरी डार्लिंग, इट्स ओके। यहूदी औरत सिसकियां भरने लगी। नंबर 3 ने अपनी पिस्तौल की नाली यहूदी औरत की गर्दन के साथ लगा रखी थी। मेरी स्टेन गन का रुख कंट्रोल कमांडर की तरफ था। नंबर 3 ने बुलंद आवाज में पूछा कि बाहर कौन लोग हैं। कमांडर ने कहा, आर्मी और एयरफोर्स के 2 जर्नैल खुफिया तौर पर आए हैं। वो बाहर हेलीकॉप्टर के पास खड़े हैं, मगर यकीन रखो कि वो भी निहत्ते हैं। नंबर 3 ने पूछा, इसके अलावा तुमने कमांडोज कहाँ छुपा रखे हैं? याद रखो तुम्हारे कमांडोज की तरफ से गोली बाद में चलेगी, पहले मेरी पिस्तौल की गोली तुम्हारी बीवी की गर्दन से गुजर चुकी होगी। कंट्रोल कमांडर ने किसी कदर लजाजत से कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम दुनिया को एटमी जंग में नहीं झोंक सकते, ये हमारी भी मौत होगी। ये सारा मिशन खुफिया रखा गया है, हमने तो बेस के अमले को भी इधर उधर कर दिया है। अब बाहर चलकर अपनी अमानत संभालें और प्लीज ये रिमोट कंट्रोल हमें देते जाएं। नंबर 3 ने पॉकेट रेडियो वाला हाथ जरा सा उठाकर कहा, जब तक हम उर्दन की सरहद पर नहीं पहुंच जाते ये रिमोट कंट्रोल हमारे पास ही रहेगा। ये बड़ी खतरनाक बात थी और इसराइली हुक्काम बिलाशुबा बिल्कुल सही तौर पर इससे परेशान थे, क्योंकि रेडियो पर अगर फ्रीक्वेंसीज मिला दी जाएं तो मिसाइल को 1000 मील से भी फायर किया जा सकता है। कंट्रोल कमांडर खामोश हो गया। हम राहदारी से कदम कदम चलते दरवाजे पर आ गए। ड्यूटी रूम भी खाली पड़ा था। मैं और नंबर 3 यहूदी औरत के दाएं बाएं थे। नंबर 3 के पिस्तौल की नाली कंट्रोल कमांडर की बीवी की गर्दन से लगी थी। मेरी स्टेन गन का रुख कंट्रोल कमांडर की तरफ था। ड्यूटी रूम के खाली होने पर मेरे दिल में शक पैदा हुआ, मगर वक्त गुजर रहा था। मैंने कुछ फासले पर एक फौजी हेलीकॉप्टर सहन के वस्त में खड़ा देखा। उसके कॉकपिट की बत्ती रोशन थी। एक इंसानी साया अंदर बैठा दिखाई दे रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, पाकिस्तानी लड़की को मेरे सामने लाया जाए। कंट्रोल कमांडर ने सीटी बजाई। हेलीकॉप्टर के अंदर से 2 फौजी अफसर बाहर निकले। एक ने फजाइया और दूसरे ने आर्मी की वर्दी पहन रखी थी। दोनों जर्नैल थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर के कॉकपिट की तरफ इशारा किया। हेलीकॉप्टर का अगला दरवाजा खुला और मैंने खंबे की मरकरी हल्की ट्यूब की रोशनी में एक दरमियाने कद की लड़की को नीचे उतरते देखा। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी, सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। बज़ाहिर वो थकी थकी और परेशान लग रही थी। दोनों जर्नैल उसे लेकर हमारी तरफ बढ़े। नंबर 3 ने चिल्लाकर कहा, जर्नैलों से कहो कि एक तरफ हटकर रुक जाएं। दोनों जर्नैल वहीं ठहर गए, फिर लड़की से 2 कदम पीछे हट गए। नंबर 3 ने मेरी तरफ देखकर कहा, लीडर हेलीकॉप्टर में ले चलो खातून को। मैं लड़की को करीब से देखकर तसल्ली करना चाहता था। मुझे उसकी तस्वीर ही दिखाई गई थी। उसकी आवाज और दूसरी तफसीलात से मैं वाकिफ नहीं था। जहां वो खड़ी थी वहां ज्यादा रोशनी भी नहीं थी। मैंने उससे पंजाबी में बात की और उसके बाप और उसके आबाई शहर का नाम पूछा। उसने दिलगीर आवाज में कहा, भाईजान खुदा के लिए मुझे इन दरिंदों से निकाल कर ले चलो, मैं अपने अब्बू से मिलने के लिए बेताब हूँ। नंबर 3 मुश्किल में था। उसके एक हाथ में मिसाइल रिमोट कंट्रोल था तो दूसरे हाथ में पिस्तौल था जिसकी नाली कंट्रोल कमांडर की बीवी की गर्दन से लगी हुई थी। उसने तेजी से पूछा, लीडर ओके? मैंने कहा, ओके ही लगता है 3। वो बोला, तो फिर हेलीकॉप्टर की तरफ चलो। मैंने पाकिस्तानी लड़की को आगे चलने के लिए कहा और स्टेन गन हाथ में ताने खुद उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों जर्नैल एक तरफ खामोश खड़े थे। कंट्रोल कमांडर हेलीकॉप्टर से 4 कदम पीछे हटकर खड़ा था। हेलीकॉप्टर में पायलट बैठा हुआ था। नंबर 3 ने चिल्लाकर हुक्म दिया कि हेलीकॉप्टर से पायलट को नीचे उतारा जाए, हम खुद हेलीकॉप्टर चलाएंगे। कंट्रोल कमांडर ने हाथ से इशारा किया। पायलट नीचे उतर आया। नंबर 3 ने उसे हुक्म दिया कि वो यहाँ से चला जाए। पायलट ने वैसा ही किया। हम इस पोजीशन में आगे बढ़ रहे थे कि पाकिस्तानी खातून आगे थी। मैं स्टेन गन ताने उसके पीछे था। किसी वक्त घूमकर चारों तरफ जायजा ले लेता। मेरे पीछे नंबर 3 यहूदी औरत को यरगमाल बनाए कदम कदम चला रहा था। हेलीकॉप्टर में रोशनी हो रही थी और वो बिल्कुल खाली था। पाकिस्तानी लड़की मुझसे पंजाबी जबान में लाहौर की बातें करने लगी। वो लाहौर के गली कूचों से वाकिफ थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि यही हमारे पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी है। मैं दिल में खुदा से दुआएं मांगने लगा कि ये मिशन कामयाब हो और हम अपनी अमानत को लेकर वापस मिस्र पहुंच जाएं। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला था। मैंने लड़की को पंजाबी जबान में अंदर दाखिल होने के लिए कहा। उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर यकदम से कलाबाजी लगाकर बाजीगर औरतों की तरह ऊपर को उछली और सीधी नंबर 3 के पेट में जाकर टक्कर मारी। नंबर 3 इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस पर मुस्तजाद ये कि कंट्रोल कमांडर की यहूदी औरत ने भी ऐन उसी वक्त उछल कर टांग नंबर 3 के हाथ पर इस तरह मारी कि उसके हाथ से रिमोट कंट्रोल दूर जा गिरा। नंबर 3 और मैं एकदम जमीन के साथ चिमट गए और फायरिंग शुरू हो गई। चारों तरफ से हम पर फायर आने लगा। हमारे साथ धोखा किया गया था। मेरे पहले ब्रस्ट से नकली पाकिस्तानी औरत का पेट खुल गया और वो पेट पकड़कर गिर पड़ी। दूसरा ब्रस्ट मैंने जर्नैलों पर मारा मगर वो जमीन पर लुढ़कते हुए इस दौरान ड्यूटी रूम की तरफ जा
चुके थे। नंबर 3 चिल्लाया, लीडर हेलीकॉप्टर। वो रिमोट कंट्रोल की तरफ रेंगने लगा, मगर चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। वो एक माहिर कमांडो की तरह उठा और लहराता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ा। एन हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर उसकी पीठ में गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गया। इस अरसे में मैं 3 छलांगे लगाकर हेलीकॉप्टर के अकब में जा चुका था। ड्यूटी रूम की छत से मुसलसल गोलियां चल रही थीं। हेलीकॉप्टर की ओट में होने की वजह से मैंने अपने आप को हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में गिरा दिया और पंखे ऑन कर दिए। उसके साथ ही मैंने इंजन स्टार्ट किया। हेलीकॉप्टर मस्त हाथी की तरह एक तरफ को झूमता, शोर मचाता, झुका झुका गौते में आ गया। मैंने उसे ऊपर उठा लिया। हेलीकॉप्टर ड्यूटी रूम के ऊपर से गड़गड़ाता, गुर्राता गुजरा तो उसके नीचे गोलियों की बौछार पड़ी। मैं कॉकपिट में अपना सर नीचे किए बैठा था। हेलीकॉप्टर को मैं पहलू की तरफ झुकाए मिसाइल स्टेशन के अहाते से निकालकर मिट्टी के तोदों की तरफ ले गया। मैं उसे ऊपर ही ऊपर उठाता चला गया। नीचे अंधेरा घुप था। बारिश रुक गई थी। मेरे आसाब तने हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जा रहा हूँ। मैंने कॉकपिट की बत्ती बुझा दी। अब मैं तारीकी में आगे बढ़ रहा था। मुझे सिर्फ चॉपर के गोल डायलों की रोशनी ही नजर आ रही थी। सुई बता रही थी कि मेरा रुख जुनूब मशरिक की तरफ है। नीचे गोलियां चलने की आवाज मुझे नहीं आ रही थी। मैं खतरे से निकला नहीं था। किसी भी वक्त इसराइली फजाइया का कोई लड़ाका तैयारा आकर मुझे तबाह कर सकता था। इस एतबार से मैं इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से दो चार था। इस हेलीकॉप्टर से जल्द अज जल्द निजात हासिल करना बहुत जरूरी था। मेरा मिशन नाकाम हो चुका था। मेरे दोनों कमांडो साथी शहीद हो गए थे। इसराइली हुक्काम ने इंटेलिजेंस की एक ऐसी लड़की को मेरे सामने पेश किया था जो पंजाबी जबान रवानी से बोल सकती थी और लाहौर शहर की गलियों से वाकिफ थी। ये उनका बिछाया हुआ जाल था जिसमें हम फंस गए थे। अब मैं हेलीकॉप्टर को किसी जगह उतार कर रात की तारीकी से फायदा उठाते हुए सहरा में फरार होना चाहता था। मेरे बचाव की बजाहिर यही एक सूरत थी। मैं हेलीकॉप्टर को नीचे ले आया ताकि जमीन का जायजा ले सकूं। अंधेरे में मुझे टेकरियों और मिट्टी के तोदों के उभरे हुए सायों के सिवा और कुछ नजर न आया। यह हेलीकॉप्टर मुझे मौत के चुंगल से बचाकर भी लाया था और अब मेरी मौत का सामान भी बनने वाला था। मेरे कान फजा में जेट लड़ाका तैयारे की आवाज पर लगे थे जो अभी तक सुनाई नहीं दी थी। इसकी वजह यही हो सकती थी कि फजाइया का करीबी एयरपोर्ट वहां से दूर होगा, लेकिन इसराइली जेट लड़ाका तैयारा किसी भी वक्त मेरे सर पर पहुंचकर रॉकेट फायर कर सकता था। मैं हेलीकॉप्टर को और नीचे ले आया। हेलीकॉप्टर आगे को झुका तेजी से बढ़ रहा था। किसी वक्त खजूर के झुंड तेजी से गुजर जाते और मिट्टी की टेकरियां आ जाती। उसके बाद रेतीला मैदान आ गया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे देख रहा था। कुछ मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। वक्त गुजरता जा रहा था। इसराइली लड़ाका जेट तैयारे किसी वक्त भी मेरे सर पर पहुंच सकते थे। मुझे जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर को छोड़ देना चाहिए था। रात की तारीकी को बादलों ने मजीद गहरा बना दिया था। एक टेकरी के ऊपर से निकलकर हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ आया तो तारीकी में मुझे दरिया का पाट नजर आया। दरिया ज्यादा चौड़ा नहीं था। उसका दूसरा किनारा भी सामने ही दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे जहन में जो मंसूबा था उसे यही दरिया अमली जामा पहना सकता था। मैं हेलीकॉप्टर को दरिया के वस्त में ले आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस दरिया की सतह पर उतार दिया और इंजन बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर दरिया में डूबने लगा। मैंने कॉकपिट की खिड़की में से दरिया में छलांग लगा दी। दरिया का पानी ठंडा था। मैंने गोता लगाया और दरिया के अंदर ही अंदर तैरता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ा। किनारे के करीब जाकर मैंने सर पानी से बाहर निकाला तो गरजता गुर्राता एक जेट फाइटर दरिया के ऊपर से गुजर गया। ये इसराइली फजाइया का लड़ाका तैयारा ही हो सकता था जो मेरी तलाश में आया था। मैंने गर्दन मोड़ कर पीछे देखा। खुदा का शुक्र है कि हेलीकॉप्टर दरिया में डूब चुका था। खामोश रात के सन्नाटे में 2 रॉकेटों के कड़ाके गूंज उठे। जेट फाइटर ने सहरा में किसी जगह 2 रॉकेट फायर किए थे। मेरा इरादा किनारे पर आने का था, लेकिन मैंने इरादा बदल दिया और दरिया में गोता लगाकर अपना रुख बहाव की तरफ कर लिया। इसराइली जेट सहरा में हेलीकॉप्टर को ढूंढ रहे थे। वो रॉकेटों के अलावा ऊपर से फायरिंग भी कर रहे थे। ऐसी हालत में यहाँ से बाहर निकलना अपनी मौत को आवाज देना था। मैं दरिया के पानी में अंदर ही अंदर इतनी देर तक बहाव के साथ साथ बहता गया जब तक के सांस ने साथ दिया। जब दम घुटने लगा तो सर बाहर निकाल कर गहरा सांस लिया और फिर गोता लगा दिया। यूं ही मैं दरिया के बहाव के साथ काफी आगे निकल गया। बहाव के रुख दूर जाना मुनासिब नहीं था क्योंकि ये दरिया यकीनी तौर पर किसी इसराइली बंदरगाह में जा गिरता था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं जाए वकू से काफी दूर निकल आया हूँ तो मैंने दरिया के किनारे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।